Assalamu alaikum dear students. I'm Kurandad and we are back with the lecture. Last time we were discussing the essays on comparison and contrast. इससे पहले आपको एक एक्टिविटी एक्सरसाइज नंबर 5 जो है करवाई गई. Today we are going to start from exercise number 6. Read a longer text comparing and contrasting plants and animals. अब आगे आपको टेक्स्ट एक ऐसी दी गई है कि जिसमें प्लांट्स का और एनिमल्स का आपस में कंपैरिजन किया गया है. आफ्टर रीडिंग इट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एहतियात से इसकी रीडिंग करें, उसके बाद आखिर में क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको आंसर देना है. सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर कौन सी सिमिलैरिटीज़ और कौन से डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं. टू अंडरस्टैंड फुली द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स यू विल फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल cells. A plant is a multicellular organism incapable of movement and produces its own food through photosynthesis. Approximately 350,000 species of plants have been identified on Earth. An animal is a multicellular organism capable of movement that cannot produce its own food. Animals acquire and ingest food from other sources. Scientists have identified more than 1 million different species. अब यहाँ पे कंपैरिजन है नंबर 1 पे मिलियन स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की और 350,000 स्पीशीज़ जो हैं वो हैं प्लांट्स की. प्लांट्स जो हैं दे आर इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट. ऑन दी अदर हैंड एनिमल्स जो हैं दे आर केपेबल ऑफ मूवमेंट. प्लांट्स जो हैं दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, while on the other hand animals they cannot produce their own food. उनको बाहर से फूड जो है वो खानी पड़ती है. ठीक है, तो अब आप देखें कि मतलब पैराग्राफ के अंदर 3 पर्सपेक्टिव में जो है वो कंपैरिजन किया गया. ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स आर वेरी डाइवर्स येट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर similar needs and functions. The similarities between plants and animals include the following: both have life cycles, both are composed of cells, both plants and animals use mitosis and meiosis. Cellular respiration occurs in the mitochondria in both plants and animals. Both plants and animals take in oxygen and release carbon dioxide during respiration. Both have hormones. Both require water and nutrients. Animals depend on plants to manufacture food. Animals eat plants. Upon death, animals decompose to provide nutrients for plants. Plants use the nutrients from the decaying remains of animals and other plants. In addition, plants use nutrients found in animal manure for growth. All living organisms have some basic similarities, but they are also different in many ways. The major differences between plants and animals are as follows. कि ऊपर जो है आपको सिमिलैरिटीज़ बताई गई थी, अब यहाँ पे नीचे डिफरेंसेस हैं. Animals are capable of locomotion, plants are not. Plants take up nutrients in water and make their own food through photosynthesis. Animals cannot make their own food and must eat other organisms to get necessary nutrients. Plant cells have cell walls whereas animal cells do not. Animals have soft cell membranes and rely on skeleton to provide and maintain body shape. Usually male and female reproductive parts are present on each individual plant. Animals are typically either male or female. Write a paragraph listing major similarities between plants and animals. Use appropriate transition words to show comparison. अब आपके ज़िम्मे असाइनमेंट है कि आपने जो है पैराग्राफ डेवलप करना है और पैराग्राफ जो डेवलप होगा वो बिटवीन विल डिपेंड अपॉन द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अगर आपने हिंट्स लेने हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स
तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ आपको जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं यहाँ तक, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब आपकी बुक का पेज नंबर 159 है, इसके ऊपर सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो आपको दी गई हैं, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ लिस्टिंग द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूज एप्रोप्रिएट ट्रांजिशन वर्ड्स टू शो द कंट्रास्ट। तो एप्रोप्रिएट जो आपके ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, मैंने आपको 2-3 दिनों से इसी बात पे हमारी डिस्कशन हो रही है कि ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं उनकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, और ट्रांजिशन वर्ड्स ही डिटरमिन करते हैं आपके ऐसे की नेचर को, कि जो आपने मज़मून लिखा है वो किस नेचर का है, ठीक है। तो दूसरा पैराग्राफ जो आपके ज़िम्मे लगाया गया है, इन दिस पैराग्राफ यू विल डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि आपने मेजर डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, और उसमें यू हैव टू यूज़ एप्रोप्रिएट ट्रांजिशन वर्ड्स। तो इफ़ यू वांट हिंट्स, कि अगर आपको हिंट्स चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, तो ये सारे जो है वो डिफरेंसेस इस पेज से 159 से शुरू होते हैं और 158 तक ये सारे डिफरेंसेस हैं। आपने करना क्या है कि इन्हीं चीज़ों को लेना है, इसमें थोड़ा बहुत लाइंस जो है वो अपनी ऐड करनी है, लेकिन यह है कि ट्रांजिशन डिवाइसेस जो हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स, उनका यूज़ आपने करना है, ठीक है। Next we have another reading assignment. Read the following comparison and contrast essay. What's good for you? Fresh versus frozen food. ये बहुत अहमियत का हामिल ऐसे है, फ्रेश फूड वर्सेस फ्रोज़न फूड, ठीक है। तो अगेन यू विल लर्न दैट हाउ similarities and differences have been elaborated with the use of the transitional devices. Eating is an activity that we humans do not do at least 3 times a day. कि खाना पीना जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम इंसान जो है वो दिन में 3 दफ़ा एटलीस्ट जो है वो सर अंजाम देते हैं। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर द वैरायटी ऑफ फूड इज़ इमेंस एंड वी are responsible for what we eat and how the food that we eat is going to affect our bodies. The purpose of this essay is to compare and contrast the differences between eating fresh food and instead of frozen food. How could there be anything better than fresh? कि fresh से कोई और अच्छी चीज़ हो सकती है? That's the question that baffles people when it comes to choosing fresh or frozen food in general. It is true that fresh fruits and vegetables direct from harvest are highest in nutrients as compared to the frozen ones, but there are scores of people who believe that frozen veggies are much safer and cleaner to eat and are easily accessible. तो अब आप इस पैराग्राफ में अगर देखें तो हमने यहाँ से ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और एक जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइस है एज़ कंपेयर टू, दूसरा ट्रांजिशनल डिवाइस जो हमारे पास आया है वो है बट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। द मोस्ट नोटेबल डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ फूड इज़ देयर फ्लेवर. Fresh food has great flavor because it is natural and is kept in natural conditions. Frozen food, however, अब ये जो however का word है again, it is the transitional device that shows the difference. However, lose a lot of flavor because there are chemical products or preservatives added to them. When comparing both types of food, it is said that they differ with reference to health factor. Frozen food loses some of the original nutrients when stored because food has to be tinned or packed. Therefore, different preservatives are added to prolong the shelf life. Frozen food has to be consumed within a deadline, otherwise it turns stale and harmful. Okay. एक जो है उसकी लिमिट होती है, उसके अंदर इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ का वर्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। देयरफॉर का वर्ड है, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है, ठीक है।
ऑन दी अदर हैंड, अब ऑन दी अदर हैंड जो है ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि हमें कंट्रास्ट के बारे में बताता है, डिफरेंस के बारे में बताता है. फ्रेश फूड इज़ फ्रेश एंड हैज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. All one needs is to wash, clean, cook and eat. There are strong supporters of fresh food who believe that there is no substitute for fresh home-cooked food. Yet another difference between these two types of food is the cost and its availability. Frozen food is much more expensive than the fresh food. Consumers not only have to pay the price for the food they buy, but have to pay extra for the packaging and the stores they are sold at. Frozen food most of the time is available at only exclusive stores who naturally charge more from customers. Fresh food is easily available at every nook and corner of the street and sold at people's doorsteps by the age-old thelewalas and of course at an affordable rates. As we can see, it comes down to a personal choice, fresh food or frozen food. The choice is based on the time each person has, the money and the importance the person gives to the nutrition and health. ठीक है जी, तो ये हमने ऐसे देख लिया कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव ऐसे? इज़ इट अ कंपैरिजन ऐसे और अ कंट्रास्ट ऐसे? जी बिल्कुल, इसमें कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट जो है, बल्कि इसमें ज़्यादा कंट्रास्ट जो है वो दिखाया गया है. वाई डू यू थिंक इट इज़ आइदर? व्हाट सिग्नल्स डिड यू नोटिस? कैन यू अंडरलाइन दो सिग्नल्स और सेंटेंसेस टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू? ये तो अंडरलाइन जो है वो हमने वर्ड्स को किया है ऑलरेडी. जब हमने मजमून को रीडिंग दी थी तो उसमें हमें पता चला कि भाई ये इस मजमून के अंदर जो है वो फ्रेश फूड्स और जो फ्रोज़न फूड्स हैं उनका कंट्रास्ट किया गया है आपस में. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज़ फिल इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन. फ्रेश फूड हैज़ अ ग्रेट फ्लेवर, फ्रोज़न फूड ऑन द अदर हैंड does not have rich flavor, has essential nutrients. Frozen food has nutrients but has less nutrients. As compared to fresh food. Okay, is easily available, is not easily available, is affordable, is expensive. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें इस मज़मून के अंदर बताई गई थी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू एक्सरसाइज नंबर 8. रीड द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन टू सीजन्स, ऑटम एंड स्प्रिंग. हाउ वुड यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू? रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स carefully and then write similar comparison and contrast sentences using appropriate transition verbs. Spring is warmer whereas autumn is cooler. Contrast, both seasons are colorful. ठीक है, तो ये चीज़ें तो लिखी हुई हैं. Precedes winter, precedes summer. Death, autumn is the sign of death. On the other hand, spring is the sign of birth. ठीक है, तो ये इनको अपने सेंटेंसेस के अंदर जो है कन्वर्ट करना है. एक्सरसाइज नंबर 9. नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज नंबर 9. रीड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑरेंजेस एंड एप्पल. राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द टू. कि जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं ऑरेंजेस और एप्पल्स के बीच में
उनको आप रीडिंग दें, ठीक है। उसके बाद जो है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का ऐसे लिखें। सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दे आर बोथ फ्रूट्स, दे बोथ ग्रो ऑन ट्रीज। नंबर 3, दे बोथ हैव सीड्स। नंबर 4, दे आर both edible, both have juices, apple juice and orange juice, both are grown in large orchards, के बड़े बड़े बागात में इनको उगाया जाता है, ठीक है। डिफरेंसेस, apples are usually red and oranges are orange, apples are crunchy and oranges are soft, ये डिफरेंसेस हैं। oranges are rounder than apples, they are processed differently, यानी कि दोनों को स्टोर करने का तरीक़ाकार जो है डिफरेंट है। apples are pressed for juice and juice is squeezed from oranges, ठीक है। oranges में से जूस जो है उसको निचोड़ा जाता है, लेकिन एप्पल जो है उनको प्रेस किया जाता है। apple juice has no pulp while orange juice has pulp। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं एप्पल में और ऑरेंज में, और ये नीचे जो है डिफरेंसेस बताए गए हैं बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। नाउ द एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू कन्वर्ट द सिमिलैरिटीज़ इनटू वन पैराग्राफ, ठीक है। इसको आप जो है वो एक मतलब कि पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें पता चले कि आपने जो है वो कंपैरिजन किया है। और ये जो डिफरेंसेस हैं इनको हम कहेंगे कि ये सारे के सारे कंट्रास्ट्स हैं, कंट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं। इनको आपने जो है वो अलग से पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है, और जब आप अलग से इसको पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं उनका आपने यूज़ करना है ताकि आपको पता चले कि भाई जो आपका रीडर है वो जान सके कि ये जो है वो कंट्रास्ट का ऐसे है। नाउ वी आर मूविंग इनटू एक्सरसाइज नंबर 10। ये भी उसी एक्टिविटी पे बेस करता है कि जो अभी आपने रीडिंग दी है उसको इसने पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे इसको छोड़ दें, एक्सरसाइज नंबर 11 पे आ जाएं। Here is another similar kind of exercise. Read the table given below that illustrates the similarities and differences between chocolates and potato chip. Read the points given in the table and then write a comparison and contrast paragraph similar to the one above. Use appropriate transition words. कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये ऊपर जो है पैराग्राफ लिखा है ऐसे ही आपने पैराग्राफ लिखना है। हिंट्स आपको दिए गए हैं। चॉकलेट का और पोटैटो चिप्स का जो है वो कंपैरिजन है। द चॉकलेट्स आर स्वीट एंड सॉफ्ट, ऑन द अदर हैंड द पोटैटो चिप्स दे आर साल्टी एंड क्रंची। Chocolates are usually packed in the wrappers, whereas potato chips are packed in big bags. मैं साथ साथ जो है sentences बनाता जा रहा हूँ। आप लोग if you want to write it, you should write it down in your notebooks. Both the chocolates and potato chips have the same effect, that is, they fatten the individual who eats them. Chocolate is messy when it melts. On the other hand, potato chips are good at any temperature. Both chocolates and potato chips are addictive. Chocolates can be stored in less space, however, potato chips require a lot of space to store. Both chocolates and potato chips are portable. They can easily be moved from one place to another. ठीक है, तो ये जो sentences हैं जब आप इनको लिखेंगे तो आपके पास जो है वो comparison and contrast का पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा।
Now we are moving on to next page, page number 167, that is exercise number 12. This is a slightly difficult exercise. ये थोड़ी सी मुश्किल exercise है as compared to the other exercises. There are 3 paragraphs: introduction, body and conclusion, but in each part sentences are not given in proper order. In other words, the sentences are all scrambled, jumbled. Unscramble the sentences below and put them in the right order. कि जुमले आपको दिए गए हैं, जुमले जो हैं वो रैंडम हैं, सीक्वेंस इनका गलत है, आपने जो है वो सीक्वेंस इनको देना है और ऐसे को आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो लेट अस अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज। दिस इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के 5 सेंटेंसेस हैं, इनको आप रीडिंग दें जी। तो अब हमारा काम ये है कि जम्बल्ड जुमले दिए गए हैं, मिक्स्ड जुमले हमें दिए गए हैं, हमने उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो इफ़ यू लुक एट दिस ऐसे, तो आई विल हेल्प यू आउट विद दिस वन बिकॉज इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। तो सेंटेंस नंबर 5 जो है ये नंबर 1 पर आएगा। स्पोर्ट्स हैव बीन प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर 100 ऑफ ईयर्स, मे बी 1000 ऑफ ईयर्स। दूसरा जुमला जो है वो सेंटेंस नंबर 1 होगा। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। जो तीसरा जुमला है वो सेंटेंस नंबर 3 होगा। सम ऑफ देम आर प्लेड इंडिविजुअली वेयर एज अदर्स आर प्लेड इन टीम्स अगेंस्ट अनदर टीम, ठीक है। सेंटेंस नंबर जो 4 है वो होगा ये दूसरा जुमला। Some of them are very popular and some sports provide many benefits to anyone who plays them. और सेंटेंस नंबर 5 जो है वो आखिरी जुमला आपका तीसरी स्टेटमेंट भी यही बन रहा है। I am going to write about similarities and differences between 2 sports, basketball and football, ठीक है। इसके बाद आपके ऐसे की बॉडी है, बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 है आपके पास। पेज को हम थोड़ा छोटा करते हैं ताकि स्क्रीन पे फिट हो जाए और हमारे लिए इजी हो थोड़ा इसको रीड देना, ठीक है। तो रीडिंग दें जी। इट इज़ यूजली अ रेडिश ब्राउन कलर, ऑब्वियसली ये कहीं सेंटर में आएगा। अ बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर while a football team is made up of 11 players. It is usually black and white. Another similarity, ये तो जुमला बाद में आएगा। In contrast, ये भी बाद में आएगा। Firstly, ये जुमला कहीं जो है वो शुरू में आएगा। तो हम सीक्वेंस देखते हैं। तो नंबर 1 पे जो है वो 7वां जुमला आएगा, यहाँ से आपके पैराग्राफ का आगाज़ होगा। There are some important similarities between basketball and football. उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला जुमला होगा। फर्स्टली दे आर बोथ टीम स्पोर्ट्स। टीम स्पोर्ट्स के यानी कि मिलकर लोग जो है वो इसको खेलते हैं। तीसरे नंबर पे ये वाला जुमला आएगा। अ बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट्स ऑफ 5 प्लेयर्स व्हाइल अ फुटबॉल टीम इज़ मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स। चौथे नंबर पे जो है वो सेंटेंस आएगा ये वाला। इन बोथ sports players can be replaced by substitutes when they are injured. 5वें नंबर पे सेंटेंस नंबर 4 आएगा। Another similarity between them is that they both use a ball although they are not exactly same. इसके बाद जो है वो सेंटेंस नंबर 8 आएगा हमारे पास, ठीक है। 6ठे नंबर पे football is round, light, quiet, hard and made up of either leather or synthetic material. और फुटबॉल जो है वो यूजली ब्लैक होता है एंड वाइट। तो ये 7वें नंबर पे जुमला आ गया, ठीक है। 8वें नंबर पे आएगा इन कंट्रास्ट। इन कंट्रास्ट अ बास्केटबॉल इज़ जनरली नॉट एज लाइट एज इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रबर। एंड देन सेंटेंस नंबर 1 जो है ये सबसे आखिर में फिट होगा।
Now we are moving into body paragraph number 2. बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 जो है आपका, ठीक है, उसको दोबारा हम रीडिंग दे लेते हैं. Another obvious difference is the places that these sports are played. In contrast, basketball can only be use their hands to control the ball. One difference is that the part of the body is used to control the ball. Football is generally played outdoors on grass pitches, whereas basketball is usually played indoors on a wooden surface, although quite a lot of people also play outdoors on concrete basketball courts. In football, feet are used to kick and trap the ball. Although there are some similarities, there are also some important differences. तो छठा सेंटेंस जो है ये नंबर 1 पे आएगा. तीसरा सेंटेंस जो है ये नंबर 2 पे होगा. पांचवा सेंटेंस जो है ये नंबर 3 पे होगा. दूसरा सेंटेंस जो है ये नंबर 4 पे होगा. पहला सेंटेंस जो है ये नंबर 5 पे होगा. और चौथा सेंटेंस जो है ये सबसे आखिर में होगा. ठीक है जी. इसके बाद हम देखते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है इसका सीक्वेंस उल्टा है. जो नंबर 3 है वो 1 पे आएगा, जो नंबर 2 है ये 2 पे ही रहेगा, और जो नंबर 1 है ये नंबर 3 पे चला जाएगा. ठीक है, तो ये सीक्वेंस है बेटा. आई हैव हेल्प्ड यू आउट, दो इट वाज योर एक्टिविटी टू सॉल्व, बट आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज पेज नंबर 70. जी, read the following paragraph. This paragraph only discusses the similarities. In other words, it is a comparison paragraph. कि इसमें जो है वो कदर मुश्तरक जो है सिर्फ उसको डिस्कस किया गया है. Add second paragraph that must show the differences or contrast between the two. While writing the contrast paragraph, you may discuss the weather, languages people speak, food they eat, transport people use, or any other detail that contrast the two places. अच्छा, इसको रीडिंग देते हैं जी. My hometown and the city I currently live in have several things in common. First, both are small in terms of population. For example, my hometown has a population of about 10,000 people. Similarly, the city I live in consists of about 11,000 residents. A second way in which these two towns are similar is that they are both located in the rural areas. यानी कि rural areas हैं. My hometown is surrounded by many acres of farmlands which is devoted mainly to growing sugarcane and wheat. In the same way, the city I live in is also agricultural, which grows grapes and pomegranates. ठीक है जी. ये मतलब कंपैरिजन का कंट्रास्ट था. अब आपने जो है वो कंट्रास्ट का पैराग्राफ जो है डेवलप करना है. तो लेट मी हेल्प यू विद दैट. आपके सामने जो है मैं वो यहाँ पे लिखूँगा पैराग्राफ. आप इसको बेशक जो है वो कॉपी कर लें. although से हम आगाज़ करेंगे. ठीक है जी. although there are many similarities, yet there are many कि हमने जो है टॉपिक सेंटेंस बना लिया अपना कि आल्दो कि अगरचे जो है वो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बहुत से डिफरेंसेस जो हैं वो भी
मेरे होम टाउन में और इस टाउन में जिसमें मेरी रिहाइशें यहाँ पर हैं. द फर्स्टली the weather of both towns is totally different. My hometown has hot and humid weather. On the other hand, the weather of this town is cool and damp. Another difference is language. Sindhi is spoken in my town. However, in this town, people speak पश्तो. ठीक. नाउ 2 या 3 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई और पॉइंट आ रहा है तो आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. ऑब्वियसली एज स्टूडेंट्स इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ज़्यादा काम आपने करना है, लेकिन हाउएवर आई हेल्प यू आउट विद दीज एक्टिविटीज़. और ये एक्टिविटीज़ आपके सामने जब सॉल्व होती हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि आगे हमने जो है वो इन चीज़ों को लेकर कैसे चलना है. ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, that is page number 172, and it is exercise number 14. Read a short compare and contrast essay. As you read it, separate the sentences that show comparison and sentences that show contrast. Write them down in 2 columns given below. कि आपने यहाँ से जुमले आइडेंटिफाई करने हैं, वो जुमले जो कि 2 चीज़ों का कंपैरिजन यानी कि सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं, और वो जुमले जिनके अंदर 2 चीज़ों का मतलब डिफरेंस जो है उसको हाईलाइट किया गया है. सो लेट अस रीड. पीपल ऑफ्टन से दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर, एंड सो वी एक्सपेक्ट दैट फैमिली मेम्बर्स विल हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन. ताहिर जमाल एंड हिज सिस्टर Tahira Jamal do share some similarities, but there are also some striking differences between them. Let's examine them both. तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है. अब आप देखें कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर हमें सिर्फ एक जो है बैकग्राउंड बताया गया कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम उनके बारे में क्या बात करने जा रहे हैं. हमें पता चला कि जनाब एक फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है. ताहिर जमाल और उसकी सिस्टर मतलब ताहिरा जमाल हैं, और जो आगे मतलब कि बातें होंगी उनमें हम इनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस जो हैं उन पे गुफ्तगू करेंगे. बिल्कुल इसी पैटर्न पे जब आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो यू शुड आल्सो ट्राई टू सॉल्व इट लाइक दिस. वन नोटवर्दी सिमिलैरिटी इज़ देयर इंटरेस्ट इन ड्राइविंग. अब ये जो पहला जुमला है, ठीक है, ये हमें बताता है इनकी सिमिलैरिटी के बारे में. बोथ ताहिर एंड ताहिरा हैव कार्स एंड दे एंजॉय ड्राइविंग. ठीक है. बोथ का वर्ड भी आ गया और हमें पता चल गया कि यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो शो हो रही है.
एन एडिशनल सिमिलैरिटी इज़ देयर इनिशियल्स TJ। इसके अलावा एक और जो है वो सिमिलैरिटी कि जब वो दस्तखत में अपने इनिशियल यानी कि छोटे दस्तखत करते हैं तो दोनों TJ लिखते हैं। द लास्ट सिमिलैरिटी इज़ दैट बोथ वर बॉर्न ऑन 13th, कि दोनों की पैदाइश जो है वो 13th को हुई। ताहिर वाज बॉर्न ऑन अगस्त 13th 1982 एंड ताहिरा ऑन February 13th 1980। Despite these commonalities, there are some differences। अब आगे differences की बात हो रही है। For example, they live in different countries, कि वो जो लोग हैं वो दोनों मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, ठीक है। ये उनका पहला डिफरेंस आ गया। ताहिर lives in Pakistan and ताहिरा in United Arab Emirates। Moreover, they have different occupations, कि दूसरा डिफरेंस जो है वो उनके different occupations में है। The former is an engineer whilst the later is a teacher। Finally, they differ in marital status। Tahir is still single while Tahira is married, ठीक है। तो अब जो है वो कंपैरिजन यानी कि जो अंडरलाइन सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ नंबर 1 के, उनको आपने यहाँ पे लिखना है, और जो अंडरलाइन सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ नंबर 2 के, उनको आपने कंट्रास्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। Now let us read about the twin brothers Jamal and Jawad। We expect them to be similar but they are actually different in some ways। Here are the twins' physical description, interests and jobs, ठीक है। जमाल और जवाद जो है दोनों का कंपैरिजन आपको बताया गया है। ये जो लाइन है, इस लाइन के इस साइड पे जवाद की बात हो रही है, और इस लाइन के इस साइड पे जो है वो जमाल की बात हो रही है, ठीक है जी। जमाल के ब्राउन हेयर हैं, इसके भी ब्राउन हेयर हैं, और दोनों की ब्राउन आइज़ हैं। दे बोथ आर टॉल एंड स्लिम। जमाल लाइक्स टू रीड साइंस फिक्शन, ये यहाँ पे पहला डिफरेंस आ गया, बट ही लाइक्स टू रीड। जवाद ऑन दी अदर हैंड लाइक्स टू रीड पोइट्री। जमाल रन्स 3 miles a day, कि हर रोज़ वो 3 मील जो है वो वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है। जवाद ऑन दी अदर हैंड इज़ लेज़ी एंड ही हेट्स टू एक्सरसाइज। जमाल वर्क्स एज एन आर्टिस्ट इन द टेलीविज़न, ऑन दी अदर हैंड जवाद वर्क्स एज अ डॉक्टर, ठीक है। तो पहले 2 सेंटेंसेस जो हैं वो सिमिलैरिटीज़ हैं, और आफ्टर दैट जो नेक्स्ट 3 जुमले हैं आपके वो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 15। द सेंटेंसेस बिलो एक्सप्रेस द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ट्विन्स जमाल एंड जवाद। अंडरलाइन द जॉइनिंग और द ट्रांजिशन वर्ड्स दैट शो कंपैरिजन और कंट्रास्ट। यहाँ पे आपने ट्रांजिशन डिवाइसेस जो हैं उनको अंडरलाइन करना है। नंबर 1 पे यहाँ पे आके जी बोथ, यहाँ पे भी बोथ का वर्ड है, यहाँ पे आपके पास बट का वर्ड आ गया, और यहाँ पे आ गया जी ऑन दी अदर हैंड। बोथ और बोथ जो हैं ये कंपैरिजन को शो करते हैं, बट और इसके बाद ऑन दी अदर हैंड, और उसके बाद वेयर एज। ये जो वर्ड्स हैं ये कंट्रास्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। Now let us move on to exercise number 16. Look at the pictures of 2 twin sisters, Julie and Sandy, who belong to England. List at last 3 similarities and 3 differences between them। कि 2 सिस्टर्स हैं, उनकी पिक्चर्स आपके सामने हैं, ठीक है। एक का नाम जूली है, एक का नाम सैंडी है। दे बिलोंग टू इंग्लैंड। आपने करना क्या है, you have to write 3 similarities and 3 differences between them। सिमिलैरिटी की अगर आप बात करें तो जनाब नंबर 1 पे हमें नज़र आ रहा है चश्मा। देन बोथ ऑफ देम दे हैव ब्लैक आइज़, ठीक है, और बोथ हैव लॉन्ग चिन्स। दोनों की ठोड़ी जो है वो थोड़ी सी आपको लंबी नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस। Looking at the picture we can see that Julie has black hair, on the other hand Sandy's hair are white,
Julie has a long face. On the other hand, Sandy has a round face. Julie is skinny, दुबली पतली है. Sandy on the other hand looks healthy. ठीक है. अब ये पिक्चर में से ये डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं. आगे हम देखते हैं कि हाँ आगे जो है वो हमें ब्लैंक्स दी गई हैं, जगह है लिखने के लिए. ठीक है. सिमिलैरिटीज़. तो सिमिलैरिटी में जब हम लिखना शुरू करेंगे तो द फर्स्ट सिमिलैरिटी कि both of them they wear glasses, both of them they have long chins, and both of them they have black eyes. डिफरेंसेस की जब बात आएगी तो हेयर से आप आगाज़ करेंगे. द हेयर ऑफ जूली इज़ ब्लैक वाइल ऑन द अदर हैंड द हेयर ऑफ सैंडी इज़ वाइट. जूली लुक्स स्किनी whereas Sandy looks healthy. Julie's face is long, triangle shape, while Sandy has a round shaped face. ठीक है. तो ये similarities और differences जो है ये हमने डिस्कस किए. Now we are moving on to exercise number 17. Maria is overweight and she wants to begin a regular exercise program, but she can't decide between jogging and walking. To make a choice, she reads the following short article, compare and contrast the two. Read the article and then identify the sentences that compare the two exercises and also those sentences that contrast the two exercises. ठीक है. Comparison और contrast जो है वो jogging और walking का दिया गया है. Jogging and walking are both physical fitness exercises that help people lose weight, improve their cholesterol level and help build their endurance. Jogging burns twice as many calories as compared to walking. Benefits of exercise, jogging versus walking. Jogging and walking are both physical fitness exercises that help people lose weight, improve their cholesterol level and help build their stamina. Does jogging burn more calories than walking? Jogging burns about twice as many calories as compared to walking. However, experts also say that if you run and walk the same distance, the amount of calories burned is the same. Similarly, jogging may be more effective for you to lose weight than walking because jogging burns a greater proportion of fat than walking. However, walks allow you to calm down, even sit for a while to rest. Jogging increases metabolism better than walking. Jogging may be better for improving cardiorespiratory fitness, but if you are walking fast then it does wonders for cardio fitness also. Joggers have higher risk of injury than walkers. Jogging is higher impact sport than walking. If you have joint problem then walking is recommended as it is much safer than jogging. However, jogging also helps to strengthen bones. ठीक है. तो आगे जो है वो एक्सरसाइज नंबर 18 है. शारजा का और अबू धाबी का जो है वो कंपैरिजन किया गया है इस पैराग्राफ के अंदर. ठीक है. आफ्टर रीडिंग इट राइट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू सिटीज़ इन द टेबल दैट फॉलोज. अब इसकी रीडिंग आपने करनी है पैराग्राफ की. ठीक है. आपकी स्क्रीन पे है, इसको रीड करें और इसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं उनको अपनी नोटबुक्स पे नोट करते जाएं. टेक 5 minutes and complete the reading please. Thank you. I'll be back after 4 or 5 minutes.
I hope that you have completed the reading of this paragraph. Now you have to write the similarities and differences between them. ठीक है, आपने अपनी नोटबुक पे नोट इसको कर लिया होगा ऑब्वियसली, उम्मीद है. Now we are moving into exercise number 19. You have read a quite few comparison and contrast texts. Try and do some research on your own. Find out some key facts about any two cities of Pakistan and then write a comparison and contrast essay similar to the one given above about Abu Dhabi and Sharjah. ठीक है, तो पाकिस्तान के कोई से भी दो शहर जो हैं उनका आपने आपस में मुवाजना करना है. यू माइट लाइक टू, और उसके अंदर जो डिटेल है वो दोनों शहरों की हिस्ट्री के बारे में आपने डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन डिस्कस अबाउट देयर जियोग्राफिकल लोकेशंस, आप उनकी पॉपुलेशन, आबादी और एथनिक मतलब कम्युनिटीज़ के वहाँ पर पंजाबी रहते हैं, पठान रहते हैं, सिंधी रहते हैं, कौन रहते हैं, लैंग्वेजेस स्पोकन की कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जिक्र हो सकता है मशहूर, इंडस्ट्रीज़ का जिक्र हो सकता है, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है जी. Okay ji, now let us kindly move on to last exercise of this chapter, because in this lecture we have to complete the next chapter as well, so I am skipping few exercises. That is final exercise number 22. Imagine that a friend from another city is moving to your area. कि आप ये सोचें कि आपका एक दोस्त जो है वो दूसरे शहर से आपके शहर में मूव कर रहा है. Your friend has asked you to explore 2 apartments flats which are advertised in the newspaper and then report to her about your findings. You will be comparing the two. Show your friend which one is of better value. You have to note the differences as well as the similarities. We are giving you the points that will help you write a comparison and contrast composition. Your composition should have an introductory paragraph, 2 body paragraphs discussing the major points, a concluding paragraph stating your opinion. ये नुकात हैं आपके सामने कि जिनकी बेस पे आपने ये मजमून लिखना है. ठीक है, आपने दोनों जो अपार्टमेंट्स हैं उनका मतलब कि तज्ज़िया जो आपने करना है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट जो करना है, उसमें नंबर 1 पे आपने रेंट देखना है, लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग देखनी है, पार्किंग स्पेस देखनी है, नेबरहुड का जायज़ा लेना है कि जनाब हम साए में कैसे लोग हैं. इसके अलावा कोई और पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको आप मद्देनज़र रख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो वहाँ से कितनी दूर हैं. ठीक है, जो आपके दोस्त ने जहाँ पर एडमिशन लेना है वो इंस्टीट्यूट वहाँ से कितनी दूर है. ठीक है, और इसके अलावा जो है वो जो हमारे यहाँ बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे वाटर है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सारी फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो अपने दोस्त को एक अपार्टमेंट जो है 2 में से रिकमेंड करना है कि कौन सा अपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए साबित हो सकता है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, दैट इज़ एकेडमिक रीडिंग. एकेडमिक रीडिंग होती है कि जनाब जब आप जो है पढ़ने लिखने के लिए या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में जब आप किताब से रीडिंग करते हैं, किताब से जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, जब आप किताब से चीज़ों का जायज़ा लेते हैं. ठीक है, तो लर्निंग टू रीड मीन्स लर्निंग टू प्रोनाउंस, रिकग्नाइज वर्ड्स, देयर मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द राइटर्स मैसेज. Most of us think of reading as simple passive process, but reading is actually a very complex process that requires a great deal of active participation on the part of the reader. What do we mean when we say that reading is a complex process? Well, reading involves many strategies that can help you read more quickly and effectively and understanding the writer's message. In this unit, we will teach you how to improve your reading skills. The exercises will range from simple to more difficult, but there is no need to worry because once you solve each and every exercise yourself,
यू विल नोटिस एन इम्प्रूवमेंट इन योर रीडिंग कैपेबिलिटी। कि जो एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं इस चैप्टर के अंदर, जब आप उनको अटैम्प्ट करेंगे या व्हेन आई विल हेल्प यू आउट इन अटैम्प्टिंग दोज एक्सरसाइजेज, यू विल फील दैट योर रीडिंग हैज़ इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। तो जनाब सबसे जो अहम चीज़ है वो हमें जानना कि भाई रीडिंग है क्या। तो रीडिंग की जो है वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं कुछ, ठीक है, मुख्तलिफ मकासद होते हैं। उन मकासद को हासिल करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ उनको अपनाते हैं। नंबर 1 पे है प्री व्यूइंग। प्री व्यू का मतलब ये है कि हम सरसरी जायज़ा लेते हैं। हम किताब को ओपन करते हैं, उसका हम टाइटल देखते हैं, अंदर जो उसका टेबल ऑफ मतलब कंटेंट्स का पेज होता है उसको हम एक नज़र मारते हैं और उसके बाद हम रख देते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस किताब के अंदर क्या बातें की गई हैं। जो दूसरी रीडिंग की टेक्निक है वो है प्रीडिक्टिंग। प्रीडिक्टिंग के आप जो है वो अपने इल्म का इस्तेमाल करते हैं और किताब का सब्जेक्ट और उसका टाइटल देखने के बाद आप ये चीज़ प्रिडिक्ट अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस किताब के अंदर क्या बताया गया है। उसके बाद जी 2 टेक्निक्स हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं रीडिंग की। स्किमिंग को अगर आप सिंपल अगर आप एग्जांपल देना चाहें या आपको मैं समझाना चाहूँ सादा से अल्फाज में, तो वो है दूध में से मलाई निकालना, ठीक है। स्किमिंग का क्या मतलब है, दूध में से मलाई निकालना। अब दूध के अंदर मलाई जो होती है वो उसका सबसे अहम जुज़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो स्किमिंग की रीडिंग टेक्निक है ये ऐसे है कि आप 3-4 पेजेस जो हैं उनकी उनमें से जल्दी से गो थ्रू करते हैं आइडिया लेने के लिए कि इसके अंदर कौन सी मेन बातें जो हैं जिनको बयान किया गया है। स्कैनिंग जो है वो स्किमिंग से टोटली डिफरेंट होती है। स्कैनिंग जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए की जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई अगर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसे लिखा है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताएं जनाब कि खिलाफत मूवमेंट जो है उसका आगाज़ कब हुआ और उसका इख्तिताम कब हुआ, ठीक है, तो आप जल्दी से जो है वो नज़र दौड़ाना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि खिलाफत का वर्ड आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जहाँ पे खिलाफत मूवमेंट का वर्ड आपको नज़र आएगा वहाँ पर आप ऑब्वियसली रुक जाएंगे। ये जो रुकना है और रुक कर एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन को ढूंढना, इसको हम कहते हैं स्कैनिंग, स्कैन करना, ठीक है। इसके अलावा एक और जो रीडिंग की अहम टेक्निक है वो है जी गेसिंग द मीनिंग्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। के लाइन को पढ़ना, लाइन को पढ़ने के बाद जो है वो मीनिंग का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। यानी कि एक तो जब हमारे सामने कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है और हमें उसका नहीं पता, तो एक तो उसका मीनिंग जानने की टेक्निक ये होती है कि जनाब हम जो है वो अपने घर के अंदर कहीं किसी कोने में हमने डिक्शनरी छुपा के रखी होती है और वो हम जो है उठते हैं अपनी कुर्सी से, हम डिक्शनरी ढूंढते हैं, उसको लेकर आते हैं और हम ओपन करते हैं, वो वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं। इतने में जो है वो हमारा रीडिंग का टेम्पो टूट जाता है, ठीक है। तो गैसिंग द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि अपने इल्म और अपनी अकल को इस्तेमाल करना, उसको इस्तेमाल करते हुए अल्फाज जो हैं उनके मीनिंग, उनके मानी, उनको गैस करने की कोशिश करना और डिक्शनरी का इस्तेमाल जो है उसको रिड्यूस करना। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसकी अहमियत क्या है? इसकी ज़रूरत हमें इस वजह से पेश आती है क्योंकि हम एक एक वर्ड जो है उसकी मीनिंग देखने के लिए रुक नहीं सकते, हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हम जनाब अंदाज़ा लगाते हैं मीनिंग का और हम आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो हर दफ़ा जो है वो हम डिक्शनरी जो है उसको कंसल्ट नहीं करते, ठीक है। So let's move next. We have already practiced most of the above reading skills and strategies. जी इंग्लिश 1 के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से जो है वो आपको guessing the words meanings by using context clues जो है उसकी दोबारा से प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। We hope that you remember that by guessing meanings
of the words. Through context, we mean finding clues or hints within the sentence that will help you to understand or guess the meaning. कि जुमले के अंदर ऐसे hints, ऐसे इशारे ढूंढना कि जिससे लफ्ज़ का मतलब जो है वो पता चल जाए. Learning how to guess meanings of words you don't know is an important skill. ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनाब जब तक ये स्किल आपके पास नहीं होगा उस वक्त तक आप स्पीडी रीडिंग जो है, तेज़ रीडिंग जो है वो आप नहीं कर सकते. Nobody wants to look every word up in a dictionary. If you learn how to guess the unfamiliar words in a sentence, then you won't have to read with your dictionary open all the time. कि अगर आप ये टेक्निक सीख जाते हैं तो आपको हर लफ्ज़ के लिए डिक्शनरी जो है वो ओपन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती. ठीक है, अब आगे सेंटेंस आपको दिया गया है जनाब. इसमें एक वर्ड जो है स्लिदर्ड, इसको बोल्ड किया गया है. ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू गेस, you have to use the sentence, the clues that are within the sentence to guess the meaning of this word. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? The snake slithered through the grass, it was hunting. अब हमें दो वर्ड्स ऐसे हैं कि नंबर 1 पे ये है through the grass, यानी कि घास में से. अब घास में से का मतलब ये है कि कुछ हरकत वाली बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है. और दूसरी बात जो है ये है कि हंटिंग, कि स्नेक जो है इट वाज हंटिंग, शिकार कर रहा था. तो हंटिंग जो है वो सोकर या एक जगह पे लेट के या एक जगह पे बैठ के तो नहीं होती. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव अराउंड. तो हमें पता चलता है कि ये जो वर्ड है स्लिदर्ड, इसका मतलब कुछ मूवमेंट का है. ठीक है, तो आगे 4 पॉसिबल मीनिंग्स आपको दिए गए हैं, आपने उसमें से एक इसका मीनिंग गैस करना है. नंबर 1 पे है जी स्टॉप्ड मूविंग, कि सांप रुक गया. नंबर 2 पे स्लेप्ट इन द ग्रास. नंबर 3 पे एट समथिंग, अगर वो खा रहा होता तो उसको ऑब्वियसली हंटिंग की ज़रूरत ना होती. और सोते सोते आप हंटिंग नहीं कर सकते. और थ्रू दी ग्रास, यानी कि घास में से आप जो है वो हरकत रोक नहीं सकते. ठीक है, तो ये हमें लगता है कि ये तीनों मीनिंग जो है ये गलत हैं. जो असल मीनिंग है इसका वो है मूव, कि उसने हरकत की. ठीक है, तो हमें अब इस ऐसे ही मतलब जुमले के अंदर से जो है वो हेल्प लेनी होती है, और हमें जो है वो अल्फाज के ऐसे वर्ड्स के जिनके मीनिंग्स हमें नहीं आते उनको गैस करने की कोशिश करना होती है. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 186. देयर इज एक्सरसाइज नंबर 1. Guess the meaning of the word given in the bold in each sentence. Choose the best answer. She had often come into conflict with her mother-in-law. तो मदर इन लॉ जो होती हैं जनाब, उनके साथ हमें पता है कि कोई प्यार मोहब्बत जो है वो औरतों का होता ही नहीं है. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑब्वियसली उसका मतलब जो है वो आर्गूमेंट, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है. अनाउंसमेंट जो है वो उसका मीनिंग हो नहीं सकता. एक्साइटमेंट भी इसका मीनिंग नहीं हो सकता. द ओल्ड वुमन्स ब्लंट क्वेश्चन एम्बेरस्ड हर, मेकिंग हर फील शाय. अब नंबर 1 पे ब्लंट क्वेश्चन के सीधा सवाल. दूसरा है मेकिंग हर फील शाय, कि उसको शर्म महसूस हुआ. तो ऑब्वियसली जब शर्म की बात आ रही है तो सवाल से भी शर्म आई है. तो शी डजंट फील हैप्पी, शी डजंट फील एंग्री, रादर शी फेल्ट अशेम्ड. अशेम्ड इसका आंसर होगा जी एम्बेरस्ड का. वी जस्ट नीड अ कपल ऑफ मोर चेयर्स so everyone can sit. कपल का मतलब 1 2 3 के कपल तो बड़ा कॉमन वर्ड है. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जोड़ा होता है, और जोड़ा जो है उसमें कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं. तो जनाब कुर्सियों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट वी नीड 2 more chairs. ओके, मदर कीप्स टेलिंग मी दैट एन inadequate supply of vitamin A can लीड टू ब्लाइंडनेस. ठीक है,
अब इनएडिक्वेट, इन का वर्ड आ गया, इन का मतलब ऑलरेडी जो होता है लेस होता है, ठीक है। और एडिक्वेट जो है, एडिक्वेट का मतलब इनफ। तो इनएडिक्वेट मींस नॉट इनफ, कि अगर आप जो है विटामिन ए जो है उसकी इनटेक आपकी लेस है तो देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट गो ब्लाइंड, ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू हेल्प यू गेस द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. Some of these ways are explained below. Read carefully the following explanation and then do the exercises that follow. Keywords is called, known as, defined, described as, mean. What is this means? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है. Inflation is a rise in general level of price we pay for things we buy. Unfamiliar word जो था यहाँ पे वो inflation. तो inflation जो है वो obviously आपके meaning बताया गया कि महंगाई है, ठीक है. We have second exercise. Guess the meaning of the words given in bold. The encyclopedia defines astrology. Astrology का अब आपने meaning guess करना है तो define है, तो मतलब ये है कि जितना आगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ बताया गया है ये सब इसके मीनिंग है जी. तो ये जो वर्ड है डिफाइंस, डिफाइंस का जो वर्ड है ये हमें बताता है कि एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग जो है वो आगे इसी लाइन के अंदर लिखा हुआ है. द एंशिएंट आर्ट और साइंस ऑफ डिफाइनिंग द फेट और फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय द पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़, ठीक है. तो नाउ वी नो कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इल्म फल्कियात है, इसका हेवनली बॉडीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ है और हेवनली बॉडीज़ को देखकर इंसान का फेट और उसका फ्यूचर जो है उसको डिस्कस इसमें किया जाता है. सेल्स लिटरेचर मींस प्रिंटेड मैटर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन गुड्स. अब ये सेल्स लिटरेचर एक न्यू वर्ड है, लेकिन हमें ये जो मीन का वर्ड है इससे पता चलता है कि ये जो आगे सारी बात है ये इसका मीनिंग है. तो वी डू नॉट नीड टू लुक इनटू डिक्शनरी इन ऑर्डर टू गेस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. द बैक ऑफ द कार यूज फॉर होल्डिंग लगेज इज कॉल्ड कार बूट इन द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है. तो अब हमें पता है कि जनाब इज़ कॉल्ड का ये जो वर्ड आया है इट रेफर्स, इससे पता चलता है कि ये जो सारी चीज़ है ये मीनिंग है इस वर्ड का कार बूट का, कि डिग्गी जो होती है कार की उसको इंग्लैंड के अंदर कार बूट कहा जाता है, ठीक है. जो एक और टेक्निक है मीनिंग को गेस करने की वो है री स्टेटमेंट. The writer sometimes defines word by restating or of repeating. के बाद राइटर जो है वो रीस्टेट करता है अपने आइडियाज़ को और वो जो वर्ड है उसके मीनिंग को रीस्टेट किया जाता है. रीड द की वर्ड्स गिवन बिलो that writers use when restating or repeating the meaning of the words. The surface of Africa consists mainly of plateaus or large flat areas. अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसका सरफेस जो है वो मेनली प्लेट्यूज या फिर लार्ज फ्लैट एरियाज़ पर मुश्तमिल है. अभी जो और का वर्ड आ गया तो और का मतलब ये है कि ये जो आगे अल्फाज आ रहे हैं ये इस बोल्ड वर्ड के सिनोनिम्स हैं, ठीक है. तो प्लेट्यू का मीनिंग हमें यहाँ से पता चल गया दैट इट इज़ लार्ज फ्लैट एरिया, ठीक है. सिग्नल वर्ड जो था जिससे हमें अंदाज़ा लगा मीनिंग का वो था और. एक्सरसाइज नंबर 3, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ aerosol cans. Simple ones contains liquefied gas, which is kind of material that is dissolved, or in the other words melted. तो अब हमें पता चल गया कि जनाब ये जो लफ्ज़ है डिज़ोल्व,
इसको दूसरे अल्फाज में इन अदर वर्ड्स के दूसरे अल्फाज में डिज़ोल्व जो है उसका मीनिंग क्या है, मेल्टेड है, मेल्ट करना यानी कि पिघलाना, ठीक है। तो सिग्नल वर्ड जो है वो और भी है, और इन अदर वर्ड्स जो है ये सिग्नल वर्ड्स हैं। इनसे हमें पता चलता है कि डिज़ोल्व जो है उसका आसान अल्फाज में मीनिंग क्या है, मेल्टेड है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है जी, एग्जांपल्स हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, रीड द की सिग्नल वर्ड्स यूज फॉर शोइंग एग्जांपल्स, ठीक है। यूज नेविगेशन बटन्स सच एज नेक्स्ट, प्रीवियस, मेन्यू एंड एग्जिट बटन्स to go back and forth or jump to other topics while you are using your computer। कि नेविगेशन बटन्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें। अब नेविगेशन बटन्स का अगर हमें ना पता हो कि मीनिंग मतलब क्या है, तो इसमें ये जो वर्ड आए हैं सच एज़ हमें बताते हैं कि जनाब ये नेविगेशन बटन का मतलब क्या है, कि जैसे नेक्स्ट का बटन हो गया, प्रीवियस का बटन हो गया, मेन्यू और एग्जिट का बटन हो गया, इस टाइप के बटन्स को हम क्या कहते हैं, नेविगेशन बटन्स कहते हैं। तो जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें आपने इस किस्म के अल्फाज ढूंढने, अगर मुश्किल लफ्ज़ के साथ ये अल्फाज सच एज़ और लगा हुआ है तो मतलब ये है कि उस लफ्ज़ का मीनिंग जो है वो भी आगे राइटर ने लिखा है। एक्सरसाइज नंबर 4, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बोल्ड। अब आपने क्या करना है कि जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपने गैस करना है। Some people do wicker work, for example they make baskets, toys, plates, beds and chair to earn money, ठीक है। तो इसमें अनफेमिलियर वर्ड जो है वो विकर वर्क है, और विकर वर्क के लिए उसके मीनिंग जानने के लिए जो सिग्नल वर्ड है वो फॉर एग्जांपल है, और मीनिंग हमने देखना है कि विकर वर्क का क्या होता है, टोकरियाँ बनाना, टॉयज़ बनाना, मतलब कि विकर का मतलब बैद होता है, बैद की मदद से बास्केट्स बनाना, टॉयज़ बनाना, प्लेट्स बनाना, बेड्स बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमें पता चलता है कि विकर वर्क जो है उसका मतलब क्या है, ठीक है। आई कैन प्ले क्वाइट अ फ्यू मेलोडिक गैजेट्स। अब ये मेलोडिक गैजेट्स जो है इट इज़ अ न्यू वर्ड, और ये फॉर इंस्टेंस जो है इसका मतलब होता है मिसाल के तौर पे। इस वर्ड से हमें आइडिया होता है कि इसका जो मीनिंग है वो आगे लिखा हुआ है। मेलोडिक गैजेट से मुराद क्या है, फ्लूट है, गिटार है और पियानो है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेलोडिक गैजेट्स का मतलब क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ जो टेक्निक है मीनिंग को गेस करने की, वो है जी कि आप चीज़ों का क्या करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं। राइटर्स गिव द अपोजिट वर्ड्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड अ डिफ़िकल्ट वर्ड। कि राइटर्स क्या करते हैं कि हमें अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम मुहैया करते हैं, मुतज़ाद अल्फाज जो हैं उनको मुहैया करते हैं, ताकि जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको हम समझ सकें। रीड द की और सिग्नल वर्ड्स दैट अ राइटर यूजेस टू मेक अस अंडरस्टैंड द वर्ड meanings by showing contrast. Example: although Dara and Baba are very close friends, but they are very different. Dara is spendthrift, whereas Baba loves to economize, ठीक है। तो दो वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। कि अब यहाँ पे हमने सिग्नल्स जो हैं वेयर एज आया है, वेयर एज हमने पहले पढ़ा था कि कंट्रास्ट का सिग्नल है ऑन दी अदर एंड। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, कंजूस है। इकोनोमाइज का क्या मतलब है, इकोनोमाइज का मतलब है कि जनाब कि वो अपने ख़र्चों को रिड्यूस करते हैं, यानी कि दारा साहब जो हैं वो तो बिल्कुल कंजूस हैं कि वो ख़र्चा ही नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड बाबा जो है वो इकोनोमाइज़ के अपने ख़र्चों को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, कि वो ख़र्चा रोकता नहीं है लेकिन ख़र्चों को मैनेज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 5 है अब आपके पास, ठीक है। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड।
कि बोल्ड में जो अल्फाज दिए गए हैं उनके मीनिंग आपने गेस करने की कोशिश करनी है। समी वाज रिवॉर्डेड बाय द कंपनी, ऑन द अदर हैंड हिज कोलीग अली वाज पीनलाइज्ड। ठीक है, तो रिवार्ड का मतलब आया, रिवार्ड का मतलब ये है कि इनाम देना। ठीक है, समी को रिवार्ड दिया गया कंपनी की जानिब से। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड हमने ऑलरेडी कंट्रास्ट में के पढ़ा है कि इसका मतलब होता है इसके बरअक्स। तो इसके बरअक्स जो है, एक बंदे को अगर इनाम मिला है तो दूसरे बंदे को ज़ाहिर है पनिशमेंट मिलेगी। तो पीनलाइज जो है इसका मतलब क्या है, टू पनिश समन, किसी को सज़ा देना। ठीक है, सिमिलैरिटी जो है सिनोनिम्स का इस्तेमाल किया जाता है आपको मीनिंग का आइडिया देने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान इज़ मैन्युफैक्चरिंग सुजुकी कार्स, सिमिलरली बांग्लादेश विल बी रेप्लिकेटिंग द सेम। तो पाकिस्तान जो है वो सुजुकी की कार्स जो है उनको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही का लफ्ज़ आ गया, तो बिल्कुल ऐसे का मतलब ये है कि बांग्लादेश भी वही काम करेगा। तो रेप्लिकेट का मतलब क्या है, नकल उतारना, कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को कॉपी करेगा। गैस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड, के बोल्ड में जो अल्फाज दिए गए हैं उनका मीनिंग गैस करने की कोशिश करें। द वेदर इज़ सो वेट एंड ग्लूमी, सेम एज इट वॉज लास्ट वीक, डार्क एंड डिप्रेसिंग। तो ग्लूमी का जो मीनिंग है वो अब हमें पता चलता है कि यहाँ से इट मीन्स डार्क एंड डिप्रेसिंग, के उदास, उदास इसका मतलब है। ठीक है, सेम एज जो है ये आपका सिग्नल वर्ड है, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि जनाब के ये जो आखिर में मीनिंग बताया गया है ये ग्लूमी का सिनोनिम है। ठीक है, द पार्क वाज कवर्ड विद डिब्रिस like papers and cans. Likewise, the school children were encouraged to pick all up. अब यहाँ पे डिब्रिस का वर्ड आया है और उसके बाद आगे लिखा है लाइक, डिब्रिस लाइक के डिब्रिस जैसा कि पेपर कैंस, तो हमें पता है कि ये चीज़ें कचरा होती हैं जो कि पार्क्स में लोग पकौड़े खाने के बाद पीस ऑफ पेपर जो था फेंक दिया। कोल्ड ड्रिंक आपने पीने के बाद जो है वो कैन या फिर बॉटल जो थी उसको उधर ही फेंक दिया। तो हमें पता है कि जनाब इस वर्ड का मतलब जो है वो कूड़ा करकट होगा। लाइक जो है ये सिग्नल वर्ड है और ये आगे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, मीनिंग है। ओके, इन्फ्रेंस, you may try to use many strategies as stated previously to understand new words, but sometimes you cannot understand difficult words, so you can use inference or supposition or imagination. inference का मतलब अंदाज़ा लगाना, अंदाज़े से, imagination से अल्फाज के मीनिंग जो है उनको गैस करने की कोशिश करना। तो read the following passage and try to guess, infer how a father felt when his child got D or F grades. A father examined his son's report card and suffered mild cardiac tremors as he saw a solid column of D and F grades. Outraged that a product of his gene could so disgrace the family, he confronted his son and said, Daniel, this just won't do. I can't stand these grades, and if you don't show me an immediate turnaround, you are going to be grounded. ठीक है, अब ये आपने पैराग्राफ हमने रीडिंग की, इसके बाद हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। What grades did Daniel get? तो ग्रेड्स जो थे उसको डी और एफ मिले थे। वर दे गुड और बैड ग्रेड्स? ऑब्वियसली डी और एफ जो होते हैं बैड ग्रेड्स होते हैं। What was Daniel's father's reaction to his result? रिएक्शन उसका क्या था कि he was outraged, कि उसको गुस्सा आया कि उसका बेटा जो है वो ऐसे फैमिली के नाम को मतलब डिस्ग्रेस कर रहा है। तो उसने कन्फ्रंट किया अपने बेटे को। ठीक है, व्हाट डज द फादर एक्सपेक्ट फ्रॉम दानियल इन फ्यूचर? तो दानियल से जो है वो इमीडिएट टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं इन फ्यूचर। इफ़ दानियल डज नॉट फुलफिल हिज फादर्स एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज़ हिज फादर गोइंग टू डू विद हिम? अगर वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं करता तो ही विल बी ग्राउंडेड, उसको क्या कर दिया जाएगा? ग्राउंड कर दिया जाएगा। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो। माइल्ड कार्डिक टर्मर्स,
माइल्ड कार्डिक ट्यूमर, इसका मतलब क्या है कि अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, उसको ऐसे लगा कि उसको हार्ट अटैक होना है। डिसग्रेस का मीनिंग क्या है? शर्म, शेम, ठीक है। और ऐसे ही स्टैंड जो है इसका मतलब होगा टॉलरेट। टर्न अराउंड का मतलब कि चेंज फ्रॉम बैड सिचुएशन टू अ गुड वन, ठीक है। ग्राउंडेड मीन पनिश्ड, कि उसको सज़ा दी जाएगी। स्टक भी हो सकता है, वैसे स्टक के उसको घर के अंदर बंद कर दिया जाएगा। जी अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8 है। You are going to do some pre-reading activities which are actually prediction exercises that will allow you to make intelligent guesses about what you are going to read and will give you a certain level of readiness before you actually begin to read. To begin with, here is a picture. Look at it and guess, predict the background of this picture. What is the picture trying to convey? आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक है, उसको आपने गेस करना है। पिक्चर जो है ये बेसिकली कुछ सेटिंग का डिफरेंस हो गया। तो ये पिक्चर है, ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की पिक्चर है। एक साइड पे इंडियन सोल्जर खड़ा है, दूसरी साइड पे जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर खड़ा है, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बारे में कुछ जो है वो गुफ्तगू होने लगी है। ये पिक्चर है जी मज़ीद, मतलब कि बॉर्डर एक साइड पे पाकिस्तान का है, दूसरी साइड पे इंडिया का है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आवाम बैठी है और इधर भी हमें आवाम नज़र आ रही है, और गेट्स जो हैं वो हमें बंद नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इट कुड बी द बॉर्डर ओपनिंग सेरेमनी और इट कुड बी द बॉर्डर क्लोजिंग सेरेमनी एट वाघा बॉर्डर। अब आप जो है वो टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो आखिर में क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर देंगे। नो वन सीम्ड दैट एक्साइटेड अबाउट द वाघा बॉर्डर व्हेन आई मेंशनड इट। फ्यू एक्चुअली न्यू what it was. For me, I knew a little of the history between Pakistan and India, and have heard about one of the greatest spectacles that happen daily between the two neighboring countries at Wagah border. I took a taxi that cost me 700 to take me to the Wagah border. I arrived at border 30 minutes before the daily ceremony was about to begin. Here is where each evening both Pakistanis and Indians gear up with full military might for lowering the flag. इसके शाम को जो है वो झंडे उतारे जाते हैं। I looked at the long green and white border gate ahead. The place looked like a stadium. Almost immediately a selection of speakers boomed on some Pakistani music and a small crowd cheered. Already I could feel this was something very special in the world. I have crossed many borders, and this was for sure the most unique. I could see clearly the small gathering at Pakistani side of the border, and a bus loads of Indians getting off on the other side of the double gates. A man dressed in Pakistani flag t-shirt and waving a flag came running. He began to shout, encouraging the crowd. They responded with passion, cheers of Pakistan Zindabad and Allahu Akbar rose up with friendly fists and smiles directed at their Indian counterparts. Officers in full dress uniform came marching down. Soldiers kicked their legs in the air, encouraged by shouts from the crowd. Chants and cheers rose up as people ran toward the border gates. Waving the Pakistani flag on the other side, the Indian cheered their soldiers. The flag ceremony commenced and we watched on as flag bearers lowered the two flags at the same time before exchanging the most brief of the handshakes and salutes, and the gates were slammed shut. This was a pure theatre between the once and sometimes still warming nations. And it was fantastic. The noise, the pompous overacting, the passion from the crowd all made it quite disbelieving. Both sides trying to outdo each other. I might be a little biased,
but it did seem that Pakistani soldiers kicked their legs higher into the air. It was an atmosphere of carnival. People danced on Bhangra music, and from the Indian side, people got up and danced in the galleries, and it was delightful. Who do you think has written a piece? Is the writer Pakistani, an Indian, or a foreign national? तो हमें पता चलता है कि राइटर पाकिस्तानी है. उसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये जो सेंटेंस है, आई माइट बी अ लिटिल बायस्ड, इससे हमें पता चलता है कि राइटर जो है वो फॉरेनर नहीं है, बल्कि राइटर कौन है? पाकिस्तानी है. क्योंकि बायस का मतलब क्या होता है? कि जानिबदार होना, और वो जानिबदार किस जानिब हुआ है? पाकिस्तान की जानिब हुआ है. तो इट मीन्स दैट ही इज़ पाकिस्तानी. व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन राइटिंग? ठीक है, आई न्यू अ लिटिल ऑफ द हिस्ट्री बिटवीन पाकिस्तान. हाँ जी, ये अब सेंटेंसेस हैं, इनके मीनिंग्स हैं वो आपने गेस करने की कोशिश करनी है कि इनका क्या मीनिंग है. और उसके बाद है जी, दिस वाज प्योर थिएटर between the once and sometimes still warring nations and it was fantastic. अब ये warring का वर्ड जो है ये यहाँ पर आया है, तो warring का वर्ड जो है ये वार से निकला है, तो मतलब कि लड़ाई. और it was fantastic कि ये हैरान कौन था. इसके बाद है जी 10वीं एक्सरसाइज. You are going to read a short text, but before you read it, read the title of the text. Afghanistan, the land of endless tears. Can you guess or predict what the text will be about after reading the title of the text? कि टाइटल आपको दिया गया है. टाइटल क्या है? अफ़गानिस्तान, द लैंड ऑफ एंडलेस टीयर्स. और आपने जो है वो गेस करना है, प्रिडिक्ट करना है कि ये जो सरजमी टेक्स्ट है किस चीज़ के बारे में होगी. नंबर 1 अफ़गानिस्तान के बारे में है. दिस टेक्स्ट विल बी अबाउट अफ़गानिस्तान. दूसरा हमारा गैस ये हो सकता है कि उनके टीयर्स की बात हो रही है. दिस टेक्स्ट माइट डिस्कस the wars that Afghan people had to fight. कि जो जंगें उनको लड़नी पड़ी और आज तक जो जंगें लड़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ये उसके बारे में हो. तो ये दो हमने गैस लगाए हैं, ठीक है. नाउ वी विल मूव next and read the text and look at what it really is about. Dusk was falling when the news of attack on America first reached this war-ruined city, Kabul. बिल्कुल वही बात आ गई कि जनाब शाम का वक्त था जब अमेरिका के ऊपर जो है वो हमला जो हुआ 9/11 का, उसकी खबर जो है वो काबुल में पहुंची. In the dusty twilight, Afghans held radios to their ears, listening to the accounts of the Voice of America and BBC Pashto and Persian language services. Because the country's Taliban rulers forbid television, Afghans could see no pictures of the destruction that had people everywhere in the world glued to their seat. The immensity of the World Trade Center disaster had to be described to them. When an Afghan asked me about the Twin Tower, I compared them to Afghan's giant Bamiyan Buddha statue, a symbol of national heritage that the Taliban blasted to dust. ठीक है, तो वही बात है कि जंग की बात जो है कि अफ़गानिस्तान में जंग, और आगे मतलब क्वेश्चंस हैं and you are supposed to answer these questions. जी आगे रीडिंग, कि हम रीडिंग करते क्यों हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर रीडिंग, व्हाई डू वी नीड टू रीड. तो रीडिंग जो है उसकी सेवरल रीजंस होते हैं. नंबर 1 पे वी रीड फॉर प्लेजर,
रीडिंग फॉर प्लेयर इंक्लूड्स कि जब हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक अखबार उठाते हैं, उसमें से हम कोई मतलब कि कॉलम पढ़ते हैं, या हम कोई नावल पढ़ते हैं, या हम कोई शायरी पढ़ते हैं, या हम कोई मजमून पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड रीडिंग फॉर प्लेयर। दूसरी है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, यानी कि इल्म हासिल करने के लिए जो है वो पढ़ते हैं। अब इल्म हासिल करने के लिए हम जो है वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, डिक्शनरीज़ होती हैं, अखबारें हैं, पॉलिटिकल बुक्स हैं, रिपोर्ट्स हो गई, बायोग्राफीज़ होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी रीडिंग हम करते हैं इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो टाइप है रीडिंग की वो है टू परफॉर्म अ टास्क, कि हमें कोई जो है वो असाइनमेंट दी जाती है, या हमें कोई काम दिया जाता है, और उस काम को कंप्लीट करने के लिए या सर अंजाम देने के लिए जो है वो हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो बेसिकली नीड्स हैं, चीज़ें हैं जो कि हमें मजबूर करती हैं रीडिंग करने के लिए, ठीक है। रीडिंग हेल्प्स अस बिकम इंटरेस्टिंग पीपल, रीडिंग हेल्प्स अस लर्न हाउ टू राइट करेक्टली, रीडिंग डेवलप्स आवर इमेजिनेशन, रीडिंग एंटरटेन्स अस, रीडिंग टीचेज अस अबाउट अनफेमिलियर थिंग्स, कि वो चीज़ें जिनको हम नहीं जानते उनके बारे में रीडिंग से हमें पता चलता है। रीडिंग टेक्स अस टू प्लेसेस वी हैव नेवर विजिटेड, रीडिंग जो है वो हमें ऐसी जगहों पे लेके जाती है कि जहाँ पर कभी हम नहीं गए होते। रीडिंग टेक्स अस टू टाइम्स वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, और ये ऐसे ज़मानों में हमें लेके जाती है कि जिनको हमें देखा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में पुराने नावल जो है वो उठा लें जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड में लिखे गए थे, तो आपको वो नावल पढ़ने के बाद पूरा वो जो इंग्लैंड है उस दौर का, और मतलब कैसे इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, और वहाँ पर लोग जो है वो देहातों से शिफ्ट होकर शहरों में आ रहे थे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। नंबर 9, रीडिंग इंट्रोड्यूसेस अस टू पीपल वी हैव नेवर मेट, और ऐसे लोगों से रीडिंग जो है वो हमारा तारुफ करवाती है कि जिनसे कभी हमने ज़िंदगी भर मुलाकात नहीं की। एंड रीडिंग इंट्रोड्यूसेस अस टू न्यू आइडियाज़, कि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी आपकी, उतने ज़्यादा नए आइडियाज़ जो है वो आपके जहन में आएंगे, ठीक है। सो रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ अ यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ अस रीड डिफरेंट टेक्स्ट डेली। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ रीडिंग टेक्स्ट that we normally read in our daily lives. Can you write why would you read these, for what purpose? ठीक है, कि साइन बोर्ड्स जो हैं, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में क्वेश्चन किए गए हैं कि साइन बोर्ड्स जो रोड के ऊपर लगे होते हैं उनको आप क्यों पढ़ते हैं? वाई डू यू रीड दैम? यू रीड दैम इन ऑर्डर टू गेट गाइडेंस, ताकि आपको गाइडेंस मिले, आपको पता चले कि ये रोड जो है कहाँ जाती है। नोटिसेस, जो नोटिस भेजे जाते हैं, आप इस वजह से पढ़ते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको मतलब कि क्या काम सर अंजाम देना है। इंस्ट्रक्शंस की हिदायत को हम उस वक्त पढ़ते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू डू समथिंग, जब हम कोई नया इक्विपमेंट ओपन कर के फिट करने लगते हैं, या फिर जब हम कोई नया काम सर अंजाम देने लगते हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस जो एक्सपर्ट्स की जानिब से हैं उनको हम रीड आउट करते हैं। न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ते हैं? वी रीड न्यूज़पेपर टू गेट इंफॉर्मेशन। वाई डू वी रीड एडवर्टीजमेंट्स? वी रीड एडवर्टीजमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट information about the latest products that are being introduced by different companies. उसके बाद है रेसिपीज़ के, why do you read recipes? We read recipes so that we can cook various dishes at our home. उसके बाद है डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के, why do we read doctors prescriptions? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हम इस वजह से पढ़ते हैं because we wish to buy medicine and we wish to understand that what is wrong with us. After that there are application forms. The question is that why do we read application forms? Application forms को हम इस वजह से पढ़ते हैं because we wish to apply for something. हम किसी जगह पे एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम किसी जगह पे जॉब लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें डिमांड करती हैं कि हमारे पास जो है वो
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद है मैनुअल्स, कि मैनुअल जो हैं उनको हम क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड मैनुअल। मैनुअल होता क्या है, मैनुअल के अंदर जब भी आप कोई नई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ खरीदते हैं तो उसके अंदर से उसका यूज़र मैनुअल निकलता है। यूज़र मैनुअल के अंदर आपको उसकी सारी चीज़ें, कि इसको ओपन कैसे करना है, इसको जोड़ना कैसे है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं एंड हाउ कैन यू यूटिलाइज दीज फंक्शन, की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेटर्स, लेटर हम क्यों पढ़ते हैं, लेटर हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, क्योंकि लेटर जो है वो हमें अपने प्यारों की खैर व अफियत के बारे में बताते हैं। Then there is exercise number 12. Read the following statements and guess where you would find these and what purpose do each statement serve. कि 12वीं में शक ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आपने रीडिंग देनी है, और रीडिंग करने के बाद आपने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका क्या मकसद है, इनसे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है, या इनका मकसद क्या है। ठीक है। वॉश विद सिमिलर कलर्स एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है ये इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है। नो पार्किंग, नो पार्किंग जो है ये साइन बोर्ड्स होते हैं। गॉन टू लंच बैक इन 20, ये नोट है, किसी ने नोट छोड़ा है कि अगर कोई आता है, डियर सर मैडम आई एम राइटिंग यू टू कंप्लेन अबाउट, ये एक अदद लेटर है, लेटर का आगाज़ है। ठीक है। ऐड 2 एग्स एंड स्टिर अंटिल मिक्सचर इज स्मूथ, के 2 अंडे जो हैं उनको मिलाएं और उस वक्त तक हिलाते रहें जब तक कि वो मिक्सचर जो है वो स्मूथ नहीं होता। तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ रेसिपी, कि ये कोई चीज़ बनाने की तरकीब है। इन BS कंपल्सरी इंग्लिश 1 की जो बुक थी आपकी, यू हैव डन नंबर ऑफ डिफरेंट रीडिंग एक्सरसाइजेज such as skimming, scanning and stated and implied meanings or making inferences. You are going to read a longer and an interesting text about Sadiqan. Do you have any idea who Sadiqan was? Well, Sadiqan was an outstanding painter and a calligraphist. Read the text to know more about this great icon and then do exercises that follow. कि सादिकान साहब जो थे बहुत बड़े पेंटर थे और बहुत बड़े कैलीग्राफर थे। ठीक है, उनका बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क में। तो उनकी बायो जो है, बायोग्राफी आपको बताई गई है, आपने इसको रीडिंग देनी है और इसको समझना है कि जनाब इनकी लाइफ के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बाद में तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। सैयद सादिकान अहमद नकवी was a world-renowned Pakistani artist, best known for his skills as a calligrapher and a painter. He is considered as one of the finest painters and calligraphers Pakistan has ever produced. Sadiqan was born in 1930 in Amroha, India, coming from a family of calligraphers. Sadiqan's calligraphy is endowed with divine inspiration, giving it a dimension of time and space. Before Sadiqan, few painters had experimented with this medium in Pakistan, but Sadiqan remains the most admired and respected artist who brought calligraphy into the mainstream art form, and most of the known Pakistani artists have actually followed Sadiqan's footsteps. इसके बाद एक पैराग्राफ जो है वो सादिकान साहब की पेंटिंग्स के अंदर जो है वो हाइड हो गया है, लिहाजा वी शुड नॉट बी एबल टू रीड दिस। ये उनकी कैलीग्राफी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैनी पेंटर्स हैव इमिटेटेड सादिकान ओपनली एंड वाइडली एंड इवन हिज रिप्रोडक्शंस fetch large sums for the copiers. An irony, since Sadiqan himself hardly ever sold his paintings in spite of offers from royals and common public. In a London auction house, one of his paintings was sold for $108,000. His masterpiece, Retention of Surah Rahman, has inspired many known painters of the modern era, and it can even be found
adorning the many houses in the country. Sadiq was the most prolific painter of Pakistan. He was constantly at work and he worked on large scale. He repeatedly stated that he was not interested in decorating drawing rooms of the rich and powerful. He worked tirelessly on large murals of public buildings and donated his work mostly to public. Sadiq, in his own words, was primarily a painter of symbolic figures. His murals are densely filled with images. Sadiq was a social commentator. His murals depict man's endless quest to discover and develop the potentialities that lie within him. His murals represent unparalleled artistic excellence by any artist of the country. These murals adorn the Hall of State Bank, Frere Hall, Karachi, Lahore Museum, Punjab University, Mangla Dam, Aligarh Muslim University, Banaras Hindu University, Indian Institute of Geological Sciences, Islamic Institute in Delhi, and Abu Dhabi Powerhouse, to name a few. To put it in perspective, his paintings and calligraphies in the building of Islamic Institute in Delhi alone cover more than 7,000 square feet. The ceiling of the Frere Hall displays in bold the words Arzo Samawat, Earth and Heaven, which bears a historical significance since it represents the last piece of work by Sadiq. He died before he could complete it. Before he started painting the breathtaking mural on the ceiling, he dedicated it to the citizens of the great city of Karachi. The mural is for the citizens to cherish and should be treated as a national treasure. However, because of the security conditions of the citizens are deprived of entry into the Frere Hall, and the impressive historical building along with the mural lie in desperate need of care. The bright colors Sadiq used in the mural to depict the earth and heaven, Arzo Samawat, are fading away because of the environment conditions. The large mural is painted on the dozen of individual panels that are put together like the pieces of a puzzle. Several of the panels are detached and hang down under their own weight. It is only a matter of time before the panels start falling apart. Sadiq painted thousands of paintings, drawings, and murals in his lifetime. He hardly ever sold his work and mostly gave it away. Sometimes his work was simply taken and sometimes even stolen. He did thousands of drawings and gave them away to his admirers and wrote and published hundreds of portraits. In an interview, he said, "People ask why I don't paint flowers, butterflies, and landscapes. I tell them that I see the truth and I am after reality. I am not inspired by someone posing against the backdrop of roses in a vase or pink curtains. What inspires me is a person who has gone hungry for hours and is struggling for survival. The expression that lights his face at the end of the day when he has finally found some scraps. That is what touches me. I am a painter of expression of reality." Self-proclaimed Fakir, Sadiq was an outsider in the society which was greedy and hypocrite. A fakir at heart, he gave away most of his paintings to friends and foes and painted gigantic murals in the public buildings at no cost. In his lifetime, there were 2 galleries named after him by the authorities, but they no longer exist. During 1960s, he stayed in interior Sindh in areas surrounded by desert where nothing could grow except cactus, which would break
through the rugged sandy ground. The sight of the wild cactus growing in scorching heat and surviving the harshest of conditions left a lasting impression on Sadikan. He adopted the symbol to depict labor, struggle, persistence, and triumph of hard work. Sadikan had commanding knowledge of literature. He wrote thousands of rubaiyat. These verses have been judged unique and critically acclaimed by literary elite. Like his paintings, the verses also address the topic of human nature, virtues and weaknesses of society. At the time of his death in Karachi, his attendant was present when Sadikan took his last breath at 2 a.m. The attendant did not inform the doctors of Sadikan's death and instead took off for Prayer Hall, where Sadikan had been working on the ceiling. The attendant loaded as many paintings as he could in a van, took them to a safe house, and then returned to the hospital to inform the doctors. The stolen paintings are still resurfacing for sale at regular frequency. जी, तो सादिकैन पे ऐसे आपने देखा कि कितना खूबसूरत मज़मून लिखा गया है और उनकी जो खिदमत हैं इस मुल्क के लिए और कैलीग्राफी की फील्ड में उनको डिस्कस किया गया है. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, सादिकैन्स कैलीग्राफी इज एंडोर्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट with the divine inspiration, with the symbolic significance, with the nature and its various form, mysterious and mysticism जो है ये उनकी पेंटिंग्स में नहीं है. ठीक है. The label फ़कीर refers to his status, mental energy, physical energy, simplicity and honesty. Simplicity और honesty जो है उसको वर्ड फ़कीर जो है वो रेफर कर रहा है. The paragraph 8 paints picture of a man who is selfless and sacrificing, mentally shattered, stubborn and difficult, physically weak, tiresome. Selfless and self-sacrifice. ठीक है. The primary purpose of paragraph 11 is to account for conditions in hospital, to prove the need for honesty in difficult circumstances, explain the greed and unfaithfulness of a man, argue the prevailing conditions in the country, describe loneliness of the artist. लोनलीनेस भी डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. और जो है ग्रीड भी जो है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. तो दो इसके फंक्शन हैं. ठीक है. The writer's attitude and tone in this write-up is disinterested reporting of biographical detail, expose of mythical figure, uncritical presentation of facts, praise of great men, critique of artists' artwork. तो praise of a great man है और uncritical presentation of the facts भी है कि हक़ाइक़ जो है उनको बिल्कुल ठीक अंदाज में पेश किया गया. ठीक है. Scan the text and write what do the following number figures and the date refer to. 1930 जो है उसका जिक्र आया है. $1,08,000 उनको ऑफ़र हुई थी. 7,000 का जिक्र है. 1960s का जिक्र है. 2 AM उनकी डेथ है. बाकी फिगर्स जो हैं वो आप स्कैन कर लें. आप 1930 को अगर ऐसे देखें तो वाज़े जो है वो डेट 1930 की आपको कहीं आगाज़ में नज़र आ जाएगी. ठीक है. और 1930 की डेट जो है ये देखें उनकी मतलब के पैदाइश का साल है. तो इसे हम कहते हैं स्कैन करना, कि इंफॉर्मेशन को ढूंढना, इंफॉर्मेशन को तलाश करना. ठीक है. Scan the text and make the list of the places where Sadikan murals are placed. तो जगहों के नाम कि जिन जगहों पे उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो मौजूद हैं, उन जगहों के नाम लिखें. तो आप अपनी बुक्स ओपन करें, मज़मून को दोबारा से रीडिंग दें और इसको फिलअप करें. Skim the text and answer the following questions. Beside being a painter, what other art forms Sadikan was famous for? कि एक तो उनकी जो है वो पेंटिंग और मतलब
कि कैलीग्राफी जो है इसमें फेमस थे. बिसाइड पेंटिंग एंड आर्ट फॉर्म्स सादिकैन वाज आल्सो फेमस फॉर हिज कैन यू रिकॉल इट पोएट्री, simplicity, selflessness, and honesty. इन चीज़ों की वजह से सादिकैन जो थे वो मशहूर थे. व्हाट डज टर्म ख़त सादिकैन रेफर टू? ख़त सादिकैन का मतलब होगा ऑब्वियसली कि सादिकैन साहब का जो ख़ताती का अंदाज़ है उसको हम कहेंगे ख़त सादिकैन. व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ सादिकैन पेंटिंग्स एंड मुरल्स? कि उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनका थीम क्या है? उनकी पेंटिंग्स का थीम ह्यूमैनिटी एंड सर्च फॉर ट्रूथ. सर्च फॉर ट्रूथ कि वो अपनी पेंटिंग्स में सच्चाई जो है उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं. इन पैराग्राफ 3 ही क्लेम दैट हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कैलीग्राफर वाज एक्चुअली डिवाइन इंस्पिरेशन. व्हाट एक्चुअली डज ही वांट टू कन्वे टू हिज एडमायरर्स थ्रू दिस स्टेटमेंट? कि वो ये कहते हैं कि ये डिवाइन इंस्पिरेशन है, तो वो एडमायरर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन इंस्पिरेशन है तो वो इंस्पायरर्स जो उनके अकीदतमंद हैं उनको वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है वो सेल्फ लेस होके सोचें, यानी कि खुद गर्जी जो है उससे इज्तनाब करें. ठीक है. इन पैराग्राफ 4 इट इज़ रिटन दैट मैनी पेंटर्स हैव इमिटेटेड सादिकैन ओपनली एंड वाइडली and even his reproductions fetch large sums of copiers. An irony since Saadikan himself hardly ever sold his paintings, in spite of offers from the royals and the common public. Can you infer why the writer of this text calls this whole experience an irony? आयरनी क्या है? आयरनी इस वजह से है कि आयरनी का बेसिकली मतलब होता है कि अपोजिट सिचुएशन हो जाए. ठीक है. सादिकैन ख़ुद जो है उसने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी. उसने अपनी ओरिजिनल पेंटिंग्स जो हैं उनको सेल नहीं किया बल्कि उसने उनको क्या किया? डोनेट किया. ऑन दी अदर हैंड लोगों ने उसकी ओरिजिनल पेंटिंग्स की कापियाँ बनाकर बेची और उनसे लोगों ने बेतहाशा पैसा कमाया. तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आयरॉनिकल होती है. ठीक है. इन पैराग्राफ 7 the writer of this text paints a very dismal picture. Can you read the paragraph again and infer what message the writer is trying to convey when he says he dedicated it to the citizens of the great city of Karachi, for the citizens to cherish, and it should be treated as national treasure. However, because of the security conditions, the citizens are deprived of entry into the prayer hall, and this impressive historical building along with the mural lie in desperate need of care. Colors are fading, several of the panels are detached and hang down under their own weight. It is only a matter of time before the panels start falling apart. तो इन्फेरेंस ये है कि जनाब सिटीज़न्स जो थे, शहरियों के लिए सादिकैन ने जो है वो प्रेयर हॉल का जो रूफ है उसको पेंट किया था, और वही शहरी जिनके लिए उनकी जानिब से एफर्ट की गई थी उनको उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी कंडीशंस जो हैं वो मुल्क की ख़राब हैं. ऑब्वियसली आपको पता ही है. तो इस किस्म की हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है वो हमेशा लोगों का, टेररिस्ट जो होते हैं उनका टारगेट रहती है. इन दी पैरा 8 सादिकैन इज़ कोटेड saying, people ask why I do not paint flowers, butterflies and landscapes. I tell them that I seek the truth and I am after reality. I am not inspired by someone posing against the backdrop of roses on the vase of the pink curtain, but inspires me in a person who has gone hungry for hours and is struggling for survival. This expression that lights his face at the end of the day when he finally found some scraps, that is what touches me. I am a painter of expression of reality. उनकी
फ़िलासफ़ी क्या थी कि वो खूबसूरती और जो मतलब कि बनावट है उसके दिलदादा या उसके शायक ना थे, बल्कि ही वाज द लवर ऑफ रियलिटी, कि उनको रियलिटी से और हकीकत से और जो लोग हैं, जो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन मसाइल के हवाले से वो जो है वो बात करते थे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इन द एंड ऑफ द टेक्स्ट पैरा 11 readers are told about what his attendant did. Can you infer why his attendant did what he did at the time of his death in Karachi? कि जो उसका अटेंडेंट था उसने ये हरकत क्यों की? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इंसान, दे आर ग्रीडी, और जो अटेंडेंट था उसकी सैलरी या उसकी पे कितनी होगी? ठीक है, तो अटेंडेंट को जब पता चला कि सादिकैन हैज़ डाइड तो ही रश्ड, वो दौड़ा उसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल में छोड़कर, एंड व्हाट ही डिड वाज ही स्टोल द पेंटिंग्स, गाड़ी भरी पेंटिंग्स की प्रेयर हॉल से और लेके छुपाई और गायब हो गए। ठीक है जी, और उसके बाद आगे डॉक्टर्स को बताया कि सादिकैन साहब की डेथ हुई है। अब ये रिफ़्लेक्ट क्या करता है? ये रिफ़्लेक्ट करता है एज अ होल हमारे माशरे और हमारी सोसाइटी जो है उसका एटीट्यूड ग्रीडी है। हम लोग लालची हैं, हम लोग गरीब हैं, गुर्बत के मारे हुए हैं, और सिर्फ गुर्बत के मारे हुए नहीं है बल्कि लालच और जो है वो गंदी नेचर हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और इस किस्म के जो है वो शख्स का कि जिसने ज़िंदगी भर अपनी पेंटिंग्स को सेल नहीं किया, आप उनकी पेंटिंग को चोरी करके उनको बेच के और उनसे पैसा कमाने लगे, तो ये ऑब्वियसली जो है वो मेंटेलिटी है दैट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन इट। ठीक है बेटा, कल आप लोगों की जानिब से रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो है वो स्लाइड्स शेयर कर दें आप, तो आई एम रिपीटिंग दैट ये टेक्स्ट जो आपको नज़र आ रही है ये आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, स्लाइड्स नहीं है, मैंने PDF फॉर्म में बुक ओपन की हुई है और वहाँ से जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्लाइड्स को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक्स को ओपन करें। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आप जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से किताबें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।